ناظرین، جب بھی کسی پاکستانی شخصیت کو بین الاقوامی طور پہ سراہا جاتا ہے، کوئی ایوارڈ دیا جاتا ہے، تو ہم پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے ہمارے ملک کے سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی، ان کو ایک ایوارڈ دیا گیا، ایمن کا ایوارڈ ہے، اور کہا گیا کہ جو ان کے فیصلے ہیں بہت ہی بہترین فیصلے ہیں۔ اور جب ان کو ایوارڈ دیا گیا تو ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک فقرہ بولا گیا کہ جب پاکستان بنا تو آپ نے کہا، قائد اعظم نے، کہ ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو اس بیس پہ انہوں نے بہت سارے جو فیصلے کیے ہیں، وہ فیصلے تو ہو گئے ہیں لیکن ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ خاص طور پہ جو اقلیتوں کے بارے میں انہوں نے فیصلے کیے، اور پشاور میں ایک خود کش حملہ ہوا تھا جس میں سینکڑوں کے حساب سے جو ہمارے عیسائی بھائی ہیں انہوں نے جو وفات پا چکے، اس پر انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا، تو اس فیصلے کا بھی ذکر ہوگا۔ تو میرے ساتھ ہیں بہت ہی پیاری شخصیت، کرائمز رپورٹر ہے، میں ان کے پاس چلتا ہوں اور پوچھیں گے کہ آیا جو جج صاحب نے فیصلے کیے ہیں اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ ہاں جی، بتائیے گا۔ ایک تو خوشی کی بات ہے، مبارک ہو کہ ہمارے چیف جسٹس کو بین الاقوامی طور پہ سراہا گیا، انعام دیا گیا۔ بتائیے گا کہ کیا کہنا چاہیں گے، ان کے فیصلے کس طرح کے ہوتے تھے؟ جی جسٹس تصدق حسین گیلانی صاحب نے اپنے پیریڈ میں بڑے اہم کیسز جو ہے وہ نپٹائے ہیں اور اس پہ فیصلہ جاج بھی کیے ہیں۔ اس میں ایک کیس ہے، انہوں نے ججمنٹ دی تھی، جماعت احمدیہ کا کیس تھا ان کے پاس، تو جس میں انہوں نے اپنی ججمنٹ میں یہ کہا تھا کہ جو جماعت احمدیہ کے افراد ہیں وہ اپنی چار دیواری کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنی محدودیت کے اندر آزاد ہیں اور اپنی مرضی کے ساتھ اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔ اکثر پیشتر کی ججمنٹ جو ہے یہ کوٹ کی جاتی ہے، لیکن ان کو جو ہے انسانی حقوق کا ایوارڈ دیا گیا، پر یہاں پر تو حالات جو ہے وہ یہ اکثر خراب ہو گئے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کی جو مساجد ہیں، جس میں سندھ ہے، فیصل آباد پنجاب ہے، ننکانہ صاحب، شیخو پورہ، ان علاقوں میں جہلم ہو گیا، جو احمدیہ عبادت گاہ بنی ہوئی ہے، اس کے مینار بنے ہوئے ہیں، اس کو گرانے میں ایک شدت آ گئی ہے، ایک لہر آ گئی ہے۔ تو جب متعلقہ پولیس اہلکاروں کے اس بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک قانون ہے، ججمنٹ ہے، تو وہ اکثر اس قانون کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو بظاہر اس چیز کے کہ جسٹس صاحب کو انعام ملا ہے اقلیتی حقوق اور انسانی حقوق کی وجہ سے، پر یہاں پر جو سلوک کیا جا رہا ہے اس میں پہلے کی نسبت 100 گنا زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے جو جماعت احمدیہ کے لوگ ہیں اس میں ایک خاص قسم کی تشویش پائی جاتی ہے کہ اس ملک میں کیا ان کا رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو بظاہر جو ابھی تک قانون نظر آ رہا ہے اس میں کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تو حالیہ واقعات کل بھی اور اس سے پہلے بھی مینارے گرا دیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ تو عبادت گاہیں ہیں، یہ مساجد ہیں، ان پہ جا کے پرامن طریقے سے عبادتیں کی جاتی ہیں، وہاں تبلیغ بھی نہیں کی جاتی۔ انسان جب جاتا ہے تو اللہ کے خاطر ہی جاتا ہے، تو مینارے توڑنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی ایک ہی وجوہات ہے جی کہ شاعر اسلام کی خلاف ورزی کی گئی ہے، جو کہ قادیانی ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اسمبلی میں ان کے متعلق ایک بل پاس کیا گیا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے جو کہ مسلمانوں سے مشابہت ہو۔ تو اس لیے ان کو اس بات سے بہت زیادہ خوف آتا ہے کہ جماعت احمدیہ کی مسجد کے اوپر جو مینارے بنے ہوئے ہیں اس سے اسلام کو بہت شدید خطرہ ہے۔ تو اس میں اسلام کو بچانے کے لیے پھر وہ لوگ اکٹھے ہو کر جو ہے پولیس کے پاس جاتے ہیں، پولیس کو جا کے تھریٹ کرتے ہیں، پولیس کو جا کے بزور طاقت، بزور پاور ان کو مجبور کرتے ہیں، اور کہ ہم یہاں پر جا رہے ہیں تو قادیانیوں کی جو عبادت گاہ ہے اس کی ہم مینارے کرائیں گے، ہمیں پولیس کی سپورٹ چاہیے۔ تو وہ اس کو اسی طرح پولیس کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنا کام کر لیتے ہیں۔ تو قبریں گرانے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کہ عیسائیوں میں بھی قبریں ہوتی ہیں، یہودیوں میں بھی ہوتی ہیں، مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں، اور قبریں سے کیا گرانے کا ان کا مقصد ہوتا ہے؟ قبرستان کے متعلق بھی یہی ہے کہ یہ جو افراد ہیں قبر
उस पर एक लफ्ज लिखा होता है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आखिरी नाम का, या अल्लाह का नाम लिखा होता है या कलमा लिखा होता है, तो वो उनकी दिलदारी होती है कि एक शख्स मर चुका है और उसका नाम लिखा हुआ है, तो उससे कतबे के ऊपर भी नाम अपना इस्तेमाल कर लिया है, जो कि सरिया जुर्म है। इनके इख्तियार में अगर हो तो ये लोग यहाँ तक कह दे कि आपकी जो शक्लें हैं वो मुसलमानों से मिलती है, लिहाजा वो अपनी शक्लें बदल लें, क्योंकि हमें वो शक्लें देखकर बर्दाश्त नहीं होता कि आप मुसलमान हैं और आप जो है वो गैर मुसलमान है। सिर्फ जो मुल्क ने इस मुल्क के अंदर जो पिछले 60-70 साल से लोगों के कान भरे हुए हैं, ये सब इसी का शाखसान है। अगर पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती होती तो उसमें ये वादे तौर पर लिखा गया, नेशनल एक्शन प्लान एक हिस्सा बनाया गया था कानून का, जिसमें ये बात थी कि कोई शख्स भी किसी मदद के मतलब इवन के किसी के मतलब भी मुतवाला तकरीर और हेट स्पीच नहीं कर सकता। तो यहाँ पर खुल्लो खुला जमात के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जाती है और आप ये निकालने के आगे धमकियां दी जाती है खुले लफ्जों में कि जी आपने अगर ना किया तो हम ऐसे कर देंगे। उसमें हुकूमत को भी लिया जाता है, अहम अफराद को भी लिया जाता है। तो ये उन लोगों ही का शाखसाना है कि उनकी जो इस किस्म की तरबियत हो चुकी है, फिर उनके सामने ना तो कब्रों की कोई हैसियत है ना ही मसाजिद की कोई हैसियत है। हालांकि जो पाकिस्तान का कानून है उसके अंदर एक बात वादे तौर पर लिखी जा चुकी है, कायदे है जो है उन्होंने भी यही कहा था कि रियासत का आपके मजहब के साथ कोई तल्लुक नहीं, आपका मजहब कोई भी हो इसका रियासत से कोई तल्लुक नहीं है। रियासत आप यहाँ पर आजाद है, आप अपनी मर्जी से अपनी इबादत कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो बदकिस्मती की बात है कि वो बातें इन तक इनके अमल में नहीं है। कानून में लिखा हुआ है अगर आप अकलियत है तो, लेकिन जो भी अकलियत पाकिस्तान में है, हाँ वो सिख है, हिंदू है या अहमदी है, तो वो सारे ही परेशानी के आलम में है। तो इस वक्त तो ज्यादा परेशानी की बात ये है कि एक खास मुनज़्ज़म तरीके से एक ग्रोह है जो कि आगे बढ़ के तो मसाजिद के ऊपर जो है इस तरह के हमले कर रहा है ताकि इनको मजीद जो है नुकसान पहुंचाया जा सके। तो वहाँ एक महकमा भी हुकूमत ने बनाया, इंसानी हकूक कमीशन, तो वो कमीशन की कुछ नहीं चलती, कभी इक्का दुक्का आवाज उठा देते हैं, तो रिपोर्ट तो कर देते हैं लेकिन वो दबाव नहीं डालते इंतजामिया पे, हुकूमत पे, अदलिया पे कि ये देखें क्या हो रहा है, सरेआम अहमदियों की मसाजिद को और कब्रिस्तानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। फौज इंसानी हकूक है, बदकिस्मती के साथ उनकी तो एक आप समझ लें कि एक दफ्तर की हद तक वो रिपोर्ट होती है, ये जो रिपोर्ट शाया होती है उसमें इस चीज का जिक्र होता है कि जी अहमदियों के ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं, उनकी मसाजिद को गिराया जा रहा है, उसको सील किया जा रहा है, उनके बंदों को पकड़ा जा रहा है, कुर्बानी के लिए परेशानी है। तो वो उस बात का इतना असर नहीं होता कि वो हुकूमत के वक्त के ऊपर इस बात का रोब डाल सके, इस बात को मनवा सके। तो बहरहाल वो रिपोर्ट की हद तक तो हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में कानून है ही नहीं। लेकिन जब तक इस मुल्क में अदली आजाद नहीं होगी, ईमान और इंसाफ नहीं होगा, कानून आजाद नहीं होगा, पुलिस आपकी गैर जानबदार नहीं होगी, तब तक इस मामला में कुछ भी नहीं हो सकता। तो उसके लिए तो ये जरूरी है कि कानून की रीत कायम हो और कानून सबके लिए एक जैसा हो। जो आईने पाकिस्तान में लिखा है, जो पाकिस्तान का कानून है, जो दस्तूर है, उस पर जब सख्ती से अमल दरामद होगा तो फिर कोई शख्स किसी मजहब के ऊपर सवाल नहीं कर सकेगा, उस पर उंगली नहीं उठा सकेगा। तो जब वो उंगली नहीं उठा सकेगा तो जाहिर बात है फिर उसका फीडबैक मिलेगा। लेकिन जब ये लोग मजबूरों में खड़े होकर और सड़कों पे खड़े होकर जमात के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, गालियां निकालते हैं, तो इनको पकड़ा नहीं जाता। अगर इनको उसी वक्त पकड़ा जाए, उनके खिलाफ हेट स्पीच की जो दफात है उसके तहत इनको गिरफ्तार किया जाए, तो उनको ये बात मालूम हो जाए कि अगर हम किसी मजहब के मतलब या किसी अक़लियत के मतलब कोई बात करेंगे तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे, हमारे ऊपर सजा लगेगी। तो इससे फिर इनको फर्क पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये तौहीन रसालत और गैरत रसूल का नारेबाजी करते हुए ये इनको इख्तियार है कि फिर आप बिल्डिंगों को तोड़ दें या शालों को तोड़ दें, मुल्क में बदअमनी फैला दें। तो हुकूमत जो है वो बहरहाल इनके हाथों और इनके साथ मिल के, या आप ये कह लें कि हुकूमत इनके आगे अर्गमाल बन चुकी है। तो क्या देखते हैं, हमने जिस तरह बात का आगाज किया था, अख्ताम भी वही करते हैं, जिस तरह हमारे जज साहब को अवार्ड दिया गया। और भी कोई ऐसे दलेर जज हैं जो ऐसे फैसले दे सकें, और हमारे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं जजेस, हमारे हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, बताइएगा कोई जजेस ऐसे हैं जो हक की आवाज को उठा सकें? जी
ये कुछ अर्सा पहले भी एक वाकया तो हुआ था कराची में, तो वो भी जज साहब ने बड़ा अच्छा फैसला सुनाया था कि जज साहब थे तो उन्होंने कहा था कि नाम के साथ एक वकील थे, उनके नाम के साथ सैयद लगा था, तो उसके खिलाफ उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कर दिया तौहीन रसालत का कि ये तौहीन की है, इनके नाम के साथ सैयद लगा है तो ये सैयद नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि खुद वकील थे, कराची सिंध हाई कोर्ट में उनका मुकदमा चला, तो जज साहब ने बड़ी अच्छी जजमेंट दी कि ये जो आप बार बार इनको थ्रेट कर रहे हैं और इनको मना कर रहे हैं और इनको धमकी दे रहे हैं, इसको सख्ती से बंद किया जाए। वो बाख्तियार और जिम्मेदार वकील है। उसके बाद में अपने फैसले में ये लिखा कि जो जमात अहमदिया है वो एक जमात है और उनको अपनी मर्जी के साथ, अपनी राजी के साथ अपने चार दीवारी के अंदर इबादत करने का हक हासिल है। ये इस तरह का मामला नहीं है कि जब जिसका मर्जी दिल करे वो उठ के तो आगे से जो है इस तरह की FIR करवा दे या इस तरह के वाकयात रिपोर्ट करवा दे। तो इसलिए वो बड़ी अच्छी जजमेंट थी उनकी, तो उन्होंने ये फैसला सुनाया। बाकी जज साहब मान है, अगर वो कानून के मुताबिक, इंसाफ के मुताबिक फैसला करे तो फिर तो उनको पता है कि अहमदी अफराद ना तो आगे से मजामत करते हैं, ना कभी झगड़े में मुलवस पाए गए हैं, ना इनकी तरफ से कोई शिकायत का मौका मिला है। जो कानून कहता है तो फिर उसके मुताबिक वो करे, तो फिर तो उनको पता है कि ये लोग बेकसूर है, इनका कोई कसूर नहीं है। तो जो जज होते हैं, आजमीर जज होते हैं, जो अपने दिल की आवाज सुनते हैं, इंसाफ से करते हैं, तो वो फिर इस तरह के वाकयात में रिपोर्टरली फैसला जमात के हक में करते हैं। बहुत सारे बाज़मीर जजेस हैं, फैसला कर देते हैं अहमदियों के हक में, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करवाया जाता। फिर भी शरपसंद जो हैं अनासर धमकियां देते हैं, सरेआम धमकियां देते हैं। कल के वाकये के बारे में बताइएगा, क्योंकि अभी अभी रिपोर्ट आई है कि कल भी किसी जगह मीनारे शहीद कर दिए गए। जी बिल्कुल, ये जो है 6 अगस्त को चंद शरपसंद अनासर थे, तो उन्होंने हमला किया मस्जिद के ऊपर और वहां पर उन्होंने जो मसाजिद थी हमारी, तो ये भावल नगर का गांव है चक मुराद, 168 चक मुराद डालिया वाला, वहां पर ये पुरानी मस्जिद बनी हुई है पाकिस्तान से पहले, हिंदुस्तान बनने से पहले की एक शेप की उसके मीनार बने हुए थे। तो वो दीवार को क्रॉस करके अंदर 10 से 12 अफराद आए और वहां पर जो बंदा था उनको बिस्के मारा है। उसके बाद मीनार को तोड़ने की कोशिश की गई, तोड़ा भी गया उसको वहां पे, तो ये उन्होंने हमला किया। तो इसकी रिपोर्ट जो है वो पुलिस को, मुकामी पुलिस को की गई कि वहां पे इस तरह लोग आए हैं। तो पुलिस ने फिर कहा कि हम अपनी रवायती तौर पे जैसे पुलिस जवाब देती कि अच्छा जी हम देखते हैं, हम करते हैं। हालांकि हर बात का पुलिस को पता होता है, पुलिस के इल्म में होती है, तो ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल पुलिस ने फिर रवायती तौर पे अपना बयान जारी किया है कि ठीक है जी हम देखते हैं क्या वाकयात हुए। तो वहां पर ये वाकया हुआ है। सिंध भी, सांगड़ में भी इस तरह का वाकया सिंध के अंदर हुआ। उसके बाद जेलम है और ननकाना साहब, ये कुछ हमारा जनूबी पंजाब और सिंध के जो इलाके खासी शीत लहर के अंदर है कि खास मखसूस किस्म की जो ग्रोह है जमात के खिलाफ वो एक कंपेन चला रहा है कि जिसके अंदर उनका मकसद यही कि जहाँ पर भी जमात अहमदिया की मसाजिद है उसके मीनार और उसका मेहराब को शहीद कर दिया जाए और कोशिश की जाए कि इनकी जो मसाजिद है उनको सील कर दी जाए ताकि ये इबादत न कर सके। चलें, इबादत तो अल्लाह की ज़मीन पूरी मस्जिद है जहाँ भी हम नमाज पढ़ सकते हैं। ये बताइएगा कि ये जिस तरह आपने फरमाया कि तशद्दुद भी करते हैं किसी पर्सन को पकड़ के, तो ऐसे में तो और खौफ पैदा होता है, इस बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, वो जो मुतलका एक तशद्दुद का जो, क्योंकि हमें जो उसकी रिपोर्टरली जो वाकया रिपोर्ट हुआ था उसका यही था कि वहां पर जो अफराद आए हैं तो उन्होंने जो अंदर अफराद थे उनको जब्त किया है, उनको मारना शुरू कर दिया है। उसको मारा है, मारने के बाद फिर उन्होंने वहां पर हमला किया। तो ये जो है वो एक सोची समझी साजिश के तहत ये एक पूरा प्लान किया जाता है कि हमने वहां पे इसको जानी तौर पे नुकसान पहुंचाना है, जिस्मानी तौर पे पहुंचाना है या इसको इमलाक के तौर पे नुकसान पहुंचाना है। तो 12 लोगों का ये भी इसी चीज का एक साक्ष्य है कि बाद जगह पर रिपोर्टरली हमें वाकयात का पता लगता है कि सिर्फ उन्होंने अंधे आए हैं, मीनार को तोड़ा है, भागे है वहां से, जब तक वहां पे कोई है। लेकिन बाद जगह पे रिपोर्टरली बात पता लगती है कि वहां पर ये वाकया हुआ है, क्योंकि ये जहाँ वाकया हुआ था डेरा वाला में,
तो भावनगर में, तो इसकी उन्होंने FIR जो है वो दर्ज की है, अच्छा जिसके अंदर उन्होंने 295 तादीरात पाकिस्तान, 452 है, 148, 149 और 506 दफात के तहत उन्होंने मुकदमा दर्ज की है। तो इसमें उन्होंने बताया गया था कि ये अफराद जो है अंदर आए हैं, तो जो अंदर अफराद थे उन्होंने बताया कि मेरे बीवी बच्चों जो थे वहाँ पे हम मौजूद थे, तो उन्होंने हमें आके मारना शुरू कर दिया। तो फिर उन्होंने जैसे अपने आप को बचाने के लिए शोर मचाना शुरू किया, तो उनमें से 2 से 3 अफराद थे जिनके पास पिस्टल भी मौजूद था, जो उन्होंने पिस्टल जो है निकाल दिया और उनको मजबूर किया कि खबरदार अगर आपने शोर किया तो हम आपको जान से मार देंगे। तो उसके बाद ये 10 अफराद जो है अहमदिया बैतुल-जिक्र की छत पे चढ़ गए और वहां पर जो मीनार से उसको तोड़ना शुरू कर दिया। 2 अफराद नीचे उनकी फैमिली की जो है जो साथ रहायश पजीर से, उनके सर पे पिस्टल लेकर खड़े रहे, तो ताकि ये लोग शोर गुल न कर सके। तो 12 इस तरह का वाकया रिपोर्टेड हुआ है, जिसके बाद में पुलिस को रिपोर्ट की गई है। पुलिस ने उसके मतलब FIR कर दी है बावलपुर। असले की नोक पे नाजरीन, असले की नोक पे इतला दी जा रही है शरपसंद दाखिल हुए हैं इबादत गाह में, मस्जिद में। हालांकि मस्जिद में तो बिल्कुल अमन से रहा जाता है, वहाँ भी आके शरपसंदों ने असले की नोक पर मीनार गिरा दिए हैं। तो ये बताइएगा, जो अभी आपने FIR बताई है शरपसंदों के खिलाफ हुई है जिन्होंने गिराई है मस्जिद को, इमारत को नुकसान पहुंचाया है, या जो अहमदियों के खिलाफ हुई है FIR? ये 10 नामूम अफराद के खिलाफ ही की गई है। इनकी तरफ से बताया गया था कि इस तरह ये वाकया हुआ है, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो अफराद थे, ये 10 अफराद दीवार को फलांग कर अंदर आए हैं और उसके बाद उन्होंने वहां पर मार कुटाई की है और असला भी निकाला है, उसके बाद मीनार को जो शहीद किया है। तो ये जो बेसिकली जो ये जो वहां पर मौजूद थे, जब आपको बताया कि जब वाकया हो गया तो फौरी तौर पर पुलिस को कॉल की गई है। तो जब पुलिस आई है तो जाहिर है उस वक्त पुलिस के पास इस बात का कोई जवाब मौजूद नहीं था कि वो इस चीज का कंडेम्ड करते या रोकते। तो फिर उनको इस बात की मजबूरी के तौर पर कि इनके साथ ज्यादती हुई है, इनके अफराद को असला की जोर के ऊपर उन्होंने मारा भी है और मीनारों को भी उन्होंने तोड़ा है, तो लिहाजा उन्होंने फिर इनकी जो दरखास्त थी इस पर अमल करते हुए 10 नामालूम अफराद के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया। वो भी नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। चलें, इतनी जुर्रत दिखाई उस पुलिस अफसर ने कि ये मुकदमा दर्ज कर लिया, वरना तो अहमदियों की तो सुनवाई भी नहीं होती। हम आपसे रिपोर्ट लेते रहेंगे। नाज़रीन, ये था खुसूसी प्रोग्राम। बात तो हमने की थी, एक जज साहब को अमन का अवार्ड दिया गया, लेकिन पाकिस्तान खुद बदअमनी का शिकार है। पाकिस्तान के अवाम बदअमनी का शिकार है, ऊपर से ये मजहबी इंतसाब पसंदी है जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। अल्लाह करे कि वो हालात जल्द वापस आएँ जो आज से 50 साल पहले थे। पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा था। आपका बहुत शुक्रिया। फिर आपसे दोबारा रिपोर्ट लेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।